सीमांत प्रदेश की गई प्रगति का प्रतीक है। महत्वपूर्ण सीमांत प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर तथा विकास के अनेक प्रोजेक्ट को पूरा कर दिया और बाकी में भी तेजी से काम हो रहा है। इससे यहाँ के सामाजिक आर्थिक विकास में भी तेजी आई है और मेरे संतोष का विषय है। पिछली बार जब मैं इस प्रदेश में आया था तब मैंने ईटानगर तक की यात्रा सड़क से की थी और आज मैं यहाँ तक हेलीकॉप्टर में पहुँच सका। मुझे बताया गया कि ग्रीनफील्ड मुरंगी हवाई अड्डा अगले साल अगस्त तक तैयार होगा। इस राज्य और यहाँ के निवासियों को प्रगति के मिल जाएगा। इस तरह का बदलाव महत्वपूर्ण सीमावर्ती प्रदेश और पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में हो रही नई प्रगति और विकास को दिखाता है। मैं अपने संबोधन के विषय भी इसी संदर्भ के अनुरूप करूंगा। एनईआर जिसका अर्थ है न्यू एरा ऑफ रिसर्जेंस इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। रिसर्जेंस का अभिप्राय दिए जा रहे कामों में नया रुचि नया स्फूर्ति के संकेत साफ दिखते हैं। I indeed leave it an honor to meet and address to all in this temple of democracy of the beautiful state of Arunachal Pradesh. I thank the Honorable Speaker, Honorable Chief Minister and all members for according me this rare honor. I am also delighted that I have been given the privilege of inaugurating Arunachal Pradesh Legislative Assembly Library and paper recycling unit and the auditorium. These are certainly very valuable additions to this impressive assembly building. I must tell you, honorable members, I am really impressed by the architecture of this assembly. I shall cherish this moment for a long time to come. It is always a matter of pride to visit this land of rising sun, which is in true sense of the awareness of our national motto, unity among diversity. So many different ethnicities living together in peace and harmony for many centuries. Arunachal Pradesh has a lot of strength. The whole country is looking at Arunachal Pradesh today with renewed interest due to its potential and achievements of the nation because of its enhanced landscape. It can become a sustainable powerhouse of country of 58,000 megawatt hydro power potential plants. You also have a fascinating mosaic of ethnic cultural tradition that you have carefully preserved over the years. You have excellent sports and mountaineers like Anshu Jensen, the world's first woman to scale Mount Everest twice in 5 days. And I read in the newspaper yesterday that your team has won the National Kabaddi Championship this August very well. I do hope that the state government continues to promote sport by creating infrastructure and encouraging youth to excel in sports. This morning, I had an opportunity to play badminton with the children of this state. Amazing skills and dynamism exhibited by those children. I was so impressed by that. Honorable Vice President, sir, it is a great honor for me to be on this dais that you have placed today, and it is a proud moment for all my honorable legislators to hear your words of wisdom. In your long political career, you have given your best to the nation. You have done best for the people of the nation, and you are so meritoriously chairing the Council of State, the Elders House. Sir, to me personally, you have not only been a philosopher and a guide, but also a mentor, teacher, and guardian. Sir, nation is beholden to you for setting a benchmark of probity in public life. Our state is beholden to you for your patronage, and I am beholden to you for your true
decades of action and direction. Vidhan Sabha has spearheaded the e-Vidhan initiative for its business. I applaud and congratulate our Honorable Speaker, Shri Prasad Lodhi Sonaji, for this achievement. Our Arunachal Pradesh Legislative Assembly has become India's third and northeastern state's first paperless assembly in implementing ITF solution, that is, माननीय उपराष्ट्रपति जी, आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश का जो जर्नी है वो प्री इंडिपेंडेंस वक्त में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक, इंडिपेंडेंस का बाद में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी जिसे हम नेफा के नाम से जानते हैं, और 1972 में हमारा यूनियन टेरिटरी और उसी वक्त अरुणाचल प्रदेश का नामकरण भी हुआ है इन 1972। तब से लेके 1987 जो स्टेट का जो फुल फ्लेजेड स्टेट हम लोगों को मिला, तब से लेके 72 से लेके अभी तक का जो जर्नी अरुणाचल में अप्स एंड डाउन्स काफ़ी रहा है, काफ़ी चैलेंजेस भी फेस करने को मिला है, मगर इस सदन ने उस वक्त में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो आज इस मौका का फायदा उठाते हुए मैं इस सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से, मैं अरुणाचल प्रदेश के उन सभी वरिष्ठ जो नेता इस सदन में जो लोग बैठते थे उन सबको याद करते हुए उन सबको धन्यवाद भी ज्ञापन करता हूँ। उन सभी का योगदान यहाँ पे रहा है। माननीय उपराष्ट्रपति जी, आज जैसे आज यहाँ पे आप सदन में आए और यहाँ का जो चेंजेस आपको देखने को मिला, मैं आज ऑनरेबल स्पीकर सर श्री पासांग दोरजी सोना जी और हमारे डिप्टी स्पीकर श्री तेसम पोंगते जी और उनकी सारा टीम को मैं बहुत बहुत बधाई कॉन्ग्रेचुलेट देता हूँ कि इस असेंबली जो कॉम्प्लेक्स को पूरा ट्रांसफॉर्म करके लेके आया है। ई विधानसभा का यहाँ पे शुरुआत हो गया है, विच इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अभी सदन के बाद में आप हमारे जो पेपर जो अभी पेपरलेस का जो फैक्ट्री है उसको भी आप उद्घाटन करेंगे और हमारा जो लाइब्रेरी है उसका भी आप उद्घाटन करेंगे। लाइब्रेरी में मैं इतना कहना चाहूँगा कि इट विल बी नॉट वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफ द कंट्री, बट मैं इतना जरूर कॉन्फिडेंट के साथ कह सकता हूँ कि इट इज वन ऑफ द बेस्ट अमॉन्ग द एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अरुणाचल का डेवलपमेंट के लिए माननीय उपराष्ट्रपति जी, जैसे आपने एक नया डायमेंशन जो यहाँ पे मेंशन किया, NER फॉर NER, न्यू एरा ऑफ रिजर्जेंस फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ए न्यू सेंस ऑफ डायरेक्शन, ये आपने हम सभी को एक बहुत अच्छा एक डायरेक्शन आपने दिया है। इसी के अंतर्गत में अगर मैं बोलूँ तो माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद अरुणाचल प्रदेश और पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बहुत ही अच्छा रहा है। मेरा पास शब्द नहीं है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी पूरी टीम को तारीफ करने के लिए। पिछले 7 इयर्स में, पिछले 7 सालों में बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशनल एंड विजिबल काम नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में हमेशा बोलता हूँ, सर, इट इज द बिगेस्ट स्टेट इन एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। वी आर द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट एज वेल। वी आर द नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड ऑल्सो वी आर द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट। तो हमारे यहाँ पे सर डेवलपमेंट लेके जाना इन दिस माउंटेन स्टेट, इट बिकम्स ए वेरी बिग चैलेंज फॉर अस। मगर उस चीज को एड्रेस करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और उनका पूरा टीम का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। अरुणाचल प्रदेश का जो बिगेस्ट जो चैलेंज हमारा कनेक्टिविटी में था, कनेक्टिविटी नहीं होने का कारण से हमारा जो 4 सेक्टर, जैसे टूरिज्म आपने जो मेंशन किया, हाइड्रो पावर, एग्रीकल्चर एंड एलाइड और हमारा नेचुरल रिसोर्सेज को, उसको हम लोग रिसोर्सेज को रेवेन्यू में हम लोग कन्वर्ट कर नहीं पाते थे। मगर अभी आने वाला दिनों में हम पूरा विश्वास है, हमारा आज हाईवे बहुत अच्छी प्रकार से बन रहे हैं, हमारे अरुणाचल में रेलवेज आ गया, अरुणाचल प्रदेश में अभी एयरवेज आ गया, अरुणाचल प्रदेश में हमारा डिजिटल कनेक्टिविटी अभी बहुत अच्छे से यहाँ पे काम चल रहा है। आने वाला 4-5 सालों में हमें पूरा उम्मीद है हमारे जितने भी जो यहाँ के मेंबर्स हैं उन सभी का सपोर्ट के कारण से अरुणाचल प्रदेश का डायमेंशंस जो डेवलपमेंट एक नेक्स्ट लेवल में हम लोग मिलकर लेके जाएंगे। आपने अभी इस सदन को एड्रेस करते वक्त आपने 3 Ds के बारे में भी मेंशन किया, डिस्कस, डिबेट एंड डिसाइड। मैं माननीय उपराष्ट्रपति जी को बताना चाहेगा कि हमारा अरुणाचल प्रदेश का जो लेजिस्लेटिव असेंबली, इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन्ड लेजिस्लेटिव असेंबली इन द एंटायर कंट्री। हमारे इस सदन में वी आर ऑफ 4 पार्टीज,
बीजेपी, कांग्रेस, एनपीपी एंड जेडीयू और इंडिपेंडेंट के हमारे 3 सहयोगी भी हैं। तो हम लोग सरकार की तरफ से हम लोग जो भी प्रपोजल यहाँ पे लेके आते हैं, हम लोग डिस्कस भी करते हैं, हम लोग अच्छी प्रकार से डिबेट भी करते हैं और बाद में मिलके विथ 100% सपोर्ट के साथ में उसको हम लोग उसको डिसाइड भी हम लोग करते हैं। तो आई थिंक अरुणाचल का जो हमारा जो प्रैक्टिस है बाकी का राज्य भी फॉलो करना चाहिए। और माननीय उपराष्ट्रपति जी, आपने जो पंचायत को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए यू हैव मेंशन रिगार्डिंग द 3F फंक्शन, फंक्शनरीज एंड फंड। कल ही मैंने एक इवेंट चेयर किया जिसमें हमारा पूरे डिस्ट्रिक्ट से जो पंचायत के चेयरपर्सन को बुला के राज्य सरकार की ओर से एज पर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम लोग ने राज्य सरकार की ओर से ऑन मॉडल ऑफ स्पाइस के रूप में हम लोग ने 3F को ट्रांसफर कर दिया है। तो आने वाला दिनों में हमें भी पूरा उम्मीद है कि हमारे पंचायत लोग अच्छा से काम करके हमारा खास करके जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो उपराष्ट्रपति जी भी जो मेंशन किया है उसके लेके हम लोग मीटअप कर पाएंगे, ये हमें भी पूरा आशा है। मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए माननीय उपराष्ट्रपति जी, आपका माध्यम से मैं आज फिर एक बार हमारे अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि इट्स एन होम फॉर 26 मेजर ट्राइब और उप जनजाति 100 से भी अधिक है, तो हमारे यहाँ पे कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। हमारा जो गवर्नमेंट है इट्स वेरी इंक्लूसिव, हम हमेशा लोगों को सुनने का ही हम लोग प्रयास करते हैं। हमारा CBOs को मेजर डिसीजन मेकिंग्स में उनको हम पार्टनर बनाते हैं, चाहे वो बजट ही क्यों ना हो, उन लोगों को बुला के हम लोग बजट कंसल्टेशन भी करते हैं इन लाइन्स विद द ASDG गोल्स। तो इस प्रकार से हम लोगों का गवर्नमेंट हम चलाने का पूरा यहाँ पे कोशिश कर रहा है। तो सर, आज जैसे आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग पूरे देश भर में मना रहे हैं और हम लोगों का खुशकिस्मत है कि आप इस बीच हमारे यहाँ पे आए हैं, तो आप इसके लिए मैं एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और साथ ही साथ आपको दोबारा फिर इनविटेशन एक्सटेंड करूंगा। अरुणाचल प्रदेश बहुत ही एक सुंदर प्रदेश है। नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो हमारा ईस्टर्न साइड के जो फुटहिल एरियाज उसमें ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, बहुत गर्मी एरिया है, वहाँ में भी हम लोग आपको लेके जाएंगे। सो वी आर वेरी ब्लेस्ड टू हैव यू एनिस्टास। विद दिस आई एंड माई वर्ड्स ऑफ थैंक्स। थैंक यू। जय हिंद, जय अरुणाचल।